हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एएसजी टेक सोल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आज से हम एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ऊपर सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग बहुत ही प्रिसाइजली टॉपिक्स को देखेंगे एंड क्रिटिकल टॉपिक्स को देखेंगे प्रिसाइजली, यू कैन से दैट। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो बीइंग अ आईटी प्रोफेशनल, नेटवर्क इंजीनियर, सिक्योरिटी इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, दैट वी विल सी बहुत ही प्रिसाइजली वे में। एंड these will be the short videos, not long videos. So let's start. Before I start, let me just tell you, if you guys want to reach us, you can reach us over the phone, over the WhatsApp. You can drop us mail also for any kind of training, internship, and etc. Okay, so let's start. Okay, so today we are discussing information security itself. Next video we will discuss data security. Then we will discuss email security and lots of other videos. Lots of other topics. So today, information security. So what we do in information security? So first of all, as name, information security. So we secure the information, and this information can be anything, like any data of an organization. This data can be related to the sales. This data can be related to the finance. This data can be accounts, management, your business, your products, anything. So there are many ways you can define, or you can segregate the data. Okay, so basically we segregate data as per its use, or you can say its criticality, like public data, private data. Okay, so data segregation is a huge topic itself. So we have the point is, we have the several kind of data in the organization which we have to secure, including IT data, means your infrastructure details like IP subnet, your private IP subnet, or public IP subnet, what kind of DLP you are using, FIM using. So what's your strategy, what you have implemented. So anything related to the information which could lead any kind of attack, or open some vulnerabilities for you, we have to secure those data. Okay, so securing the data, point is securing the data. Who is responsible for securing the data? So of course, everyone means first option comes in the mind, IT person. Okay, IT person or security engineer or network engineer, they are the responsible for securing the data, and for the security. But it is not like that. Everyone in the organization is equally responsible and accountable as IT person to secure any kind of information or any kind of data. So you have to convince management, you have to convince your users to that it's your responsibility also to uh, help IT, or help IT to make a very secure and very efficient network for an organization. For that, you can conduct trainings. Okay, you can conduct trainings. Okay, you can conduct awareness programs within organization to educate your users how they can do it, um, how they can
help you to secure or to secure the IT infrastructure, to ensure no harmful attacks or no any data going to be leaked in any circumstances. So it is not responsible for IT person only to secure the information. It's everyone responsibility. So everyone is responsible for protecting the information. Why? Because the because the security of a system is only good as its weakest link. जब तक आप बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हो, टिल आपके पास कोई एक वीक पॉइंट ना हो, वीक पॉइंट इन द सेंस कहीं पे आपकी इंफॉर्मेशन लीक ना हुई हो। लेट्स से कि आपने एक सिस्टम रखा हुआ है, आपने एक सिस्टम है, आपके पास एक ओल्ड सिस्टम है, लाइक जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 7, लेट्स से विंडोज 7 का सपोर्ट बंद कर दिया है, बट आपके पास कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ सॉफ्टवेयर है जो विंडोज 7 को ही सपोर्ट करता है, एंड विद इन ऑर्गेनाइजेशन इट्स अ सीक्रेट थिंग। यू विल विंडोज 7 पे ही वो एप्लीकेशन चलता है, तो यू आर यूजिंग विंडोज 7 इन योर ऑर्गेनाइजेशन, बट क्योंकि इसका सपोर्ट बंद हो चुका है तो इसके ऊपर काफ़ी vulnerabilities हैं, जिसे हैकर्स या फिर malicious यूजर्स, योर competitors कैन break your security and can come, और ये जो OS है ये और ये सिस्टम है ये कॉम्प्रोमाइज हो सकता है इफ इट इज़ ओवर द नेटवर्क, बट आपको ये नेटवर्क के ऊपर रखना पड़ रहा है। क्यों? बिकॉज यू have to run some application which supports only Windows 7. So this kind of it's a weakness in your network. Okay, so if this information will go out of your organization, then others can वो बेनिफिट उठा सकते हैं आपके इसका और आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो आपको अपने यूजर्स को ये सारी चीज़ें अवेयर करनी होगी कि वो किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लीक ना करें, डिस्कस ना करें, क्योंकि अगर वो वीकेस्ट पॉइंट अगर आपके कॉम्पिटिटर या मार्केट में किसी को पता चलता है, देन ही कैन अटैक और ही कैन और यू विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड। ओके, सो जब तक आप तब तक सिक्योर हो, तब तक आपकी सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही एनहेंस्ड है, बहुत ही सिक्योर है, टिल आपका वीकेस्ट लिंक सामने वाले को पता ना हो। तो अगर सामने वाले की वीकेस्ट लिंक आपके नेटवर्क में है, फर्स्ट अगर आपके नेटवर्क में है और वो दूसरे को पता हो गई, तो आपने कितना भी अच्छा सिस्टम बनाया हो, कितना भी अच्छा नेटवर्क बनाया हो, और इसका कोई यूज़ नहीं है। तो कोशिश कीजिए फर्स्ट कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी वीकेस्ट पॉइंट ना हो। एज आई गिव वन एग्जांपल लाइक विंडोज 7 एब्सोल्यूटली इसका सपोर्ट बंद हो चुका है, बट अभी भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसका यूज़ बंद कर दीजिए। सो नेक्स्ट, इफ इवन वन पर्सन डज नॉट पे अटेंशन टू सिक्योरिटी, द सिक्योरिटी ऑफ द होल सिस्टम इज कॉम्प्रोमाइज। ये अभी हमने डिस्कशन किया कि अगर ये जो विंडोज 7 का लूप होल है वो आपके किसी भी यूज़र ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, मीन्स उसने ये नहीं समझा कि ये कितना क्रिटिकल हो सकता है ये इंफॉर्मेशन अगर वो किसी को बाहर शेयर करे, और उसने शेयर कर दिया, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा वीकेस्ट पॉइंट हो सकता है। तो एवरी वन शुड हैव द इंफॉर्मेशन और शुड बी अवेयर कि आपके ऑर्गेनाइजेशंस में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और सिक्योरिटी को लेके उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यूज़र्स को और आपको मैनेजमेंट को बतानी होंगी। तो यूज़र्स को बताने के लिए आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, यूज़र्स को बताने के लिए आप वर्कशॉप कर सकते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम करा सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको करनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में यूजर्स को ट्रेन करने के लिए और अवेयर करने के लिए। नेक्स्ट,
वाई डू आई नीड टू लर्न अबाउट सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी हमें सीख क्यों चाहिए। ठीक है, तो गुड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो 90/10 रूल्स, मीन्स 10%। देखिए आप यहाँ पे देखो 10% जो है सिक्योरिटी सेफ गार्ड जो है वो टेक्निकल होता है, 10%, ओनली 10%। 90% of the security safeguard rely on the computer users, means you to adhere to good computing practice। तो कंप्यूटिंग प्रैक्टिस लाइक क्या हो सकता है। कंप्यूटिंग प्रैक्टिस हो सकता है जैसे आपके पासवर्ड्स को चेंज करना, आपका पासवर्ड किसी को शेयर नहीं करना, मीन्स 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ करना, और पासवर्ड प्रोटेक्शन होना, सेंट्रलाइज्ड आपका सिस्टम होना। ठीक है, एक अच्छा सा एवी होना, एंटीवायरस होना, आपने डीएलपी लगाया हो, आपने एफआईएम लगाया हो, फाइल इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपकी चीज़ों सेफ गार्ड करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सेफ गार्ड करने के लिए सिर्फ आपको 10% ये जो चीज़ें हैं वो इसमें आती हैं जो टेक्निकल हैं, लेकिन 90% चीज़ें जैसे पासवर्ड ये आपके यूज़र्स के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आपके गाइडेंस को, आपके गाइडलाइंस को वो फॉलो करता है। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज द लॉक on the door is 10%, managing the control keys, okay, managing or keeping control of the keys is 90%। तो आपने टेक्निकली तो बहुत अच्छे सिस्टम बनाया है, बट आपके यूजर्स ने अगर कोई चीज़ें लीक कर दी बाहर तो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है आपका एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर। What could happen, यहाँ पर नेक्स्ट वही है, योर लैपटॉप containing data can be stolen, a hacker can break into an application and alert data, virus can destroy the data, आजकल ransomware भी है बहुत, ज़ीरो डे अटैक भी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके इसमें आ सकती हैं। इवन दो आपने अच्छा IPS IDS लगाया हुआ है, आपने अच्छा सा फायरवॉल लगाया हुआ है, तब भी ये सारी चीज़ों के अटैक्स के चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी होती है। तो जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का जो फर्स्ट थिंग है, जो फर्स्ट समझ वो है कि कौन अकाउंटेबल है, मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कौन है रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है इसको सिक्योरिटी करने की, तो वो सभी की है, ऑल। ठीक है, इंक्लूडिंग मैनेजमेंट एंड यूजर्स। ये एक आईटी पर्सन जो है तब तक अच्छा सिस्टम, आईटी पर्सन एक अच्छा सिस्टम बना सकता है, बट उसको एक सिस्टम को मेंटेन किस तरीके से अकेले नहीं कर सकता, उसके लिए उसे मैनेजमेंट की हेल्प की भी ज़रूरत है और उसे यूजर्स की भी ज़रूरत है। तो ये सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक अच्छा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योरली मैनेज करने में आईटी प्रोफेशनल्स की हेल्प की जाए। तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम आपको चलानी चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशंस में, एंड यूजर्स को अवेयर करना चाहिए। सो ये था आज का बहुत ही बहुत ही प्रिसाइज टॉपिक। नेक्स्ट हम देखेंगे डेटा सिक्योरिटी के बारे में कि डेटा को हम कैसे सिक्योर किया जा सकता है। थैंक यू।